Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya
दंडवत प्रणाम बाबा, अनंत कोटि बहन, संत भक्त चरण जय अनंत। सिया राम महाराज जी, जय सिया राम। भगवान की अकारण करुणा से हम लोग आज भागवती सत्र के लिए एकत्र हैं। आदरणीय गुरुजन उपस्थित हैं। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, सभी भक्तजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज के मंगलाचरण के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। ओम वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा बिंब फलधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बड़े भाग्य से भागवत कथा का लाभ मिलता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। ते बड़े भाग्य से भागवत जो हम लोगों को उपलब्ध हुआ है, मिल रहा है भगवान की अकारण करुणा से, गुरुजनों के अकारण प्रेम के करने के कारण। इसलिए आज अपने गुरुवर श्री उपाध्याय जी के चरणों में हम प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आज की भागवती कथा सुधा में हम लोगों को निमज्जन कराएं। जय सिया राम। सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। सभी को सादर प्रणाम। अब प्रारंभ करते हैं। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालने या चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालङ्करोतु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज अत्यंत हमारे पुण्य प्रकर्ष का समय है कि भगवत सपरिया के लिए, भगवान की वाचिक सपरिया के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। इससे पूर्व भगवान श्री नंदनंदन की युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए इस कथा की
अत्यंत परम सम्मान्य मनीषी विद्वत्त्रयी आचार्य त्रयी की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और इस आभासीय पटल पर अत्यंत समुत्सुक भाव से कथा सुधा का अवगाहन करने के लिए उपस्थित समस्त वैष्णव जनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। यह आचार्य काली प्रसाद मिश्र जी का जो निर्देश हुआ था उसके अनुसार कुछ आचार्य जनों की आज्ञा थी, आचार्य चरणों की आज्ञा थी। उस आज्ञा के पालन में ही, उनकी आज्ञा या उनके निर्देश का पालन ही वस्तुतः हमारा ध्येय है। क्वाहम मंदमति ही, हम तो इतने मंदमती हैं, मैं श्रीमद् भागवत की कथा और उस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो केवल श्रवण करने का ही इच्छुक हूँ और श्रोता बन करके ही रहना चाहता हूँ। फिर भी आप लोगों की असीम अनुकंपा, आप लोगों का आशीर्वाद ही इस कथा का संबल है, कथा करने का। तो आइए हम लोग अब अधिक विलंब न करते हुए भगवान नंदनंदन की परम पावन कथा सुधा का पान करते हैं। प्रसंग चल रहा है, हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। वस्तुतः हम कहें तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं कल कथा में नहीं था कुछ से। तो कल की कथा जहां तक चल रही है, प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय चल रहा है। 10वें अध्याय में कथा जो आती है, युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है और भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन। इसी प्रसंग में हम लोग कथा श्रवण करते हैं और लगभग 20 श्लोक हो चुके हैं। प्रसंग यही है कि इसके पहले तो सूत जी ने पूछा, शौनक जी से उनका संवाद है कि युधिष्ठिर जी राजाओं, जो आतताई राजा थे, उनके वध करने के बाद जब उन्हें राज्य प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया, यह प्रश्न हुआ और इसके उत्तर में यह कथा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के क्रम में जैसे ही भगवान अपने द्वारका गमन की ओर प्रस्थान करते हैं और उसी समय जितने वहां के नर नारी थे, जितने भगवान के अभिन्न जन थे, भगवान को देख करके, भगवान की मधुर मूर्ति को देख करके अत्यंत वियोग के कारण परस्पर में चर्चा कर रहे हैं। भगवान भी अपने बंधुओं के आग्रह से कुछ दिन हस्तिनापुर में तो रहे, लेकिन इसके पश्चात सभी बंधुओं से मिलकर के द्वारका के लिए, द्वारका जाने के लिए भगवान अपने रथ पर सवार होते हैं। भगवान की वियोग में ये सारी प्रजा व्याकुल हो उठी। भगवान नंदनंदन सभी को आश्वासन देते हैं और यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसी प्रसंग में, इसके पहले वाले क्रम में आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान चलते हैं तो अर्जुन ने छत्र ग्रहण किया, उद्धव और सात्यकी जी ने भगवान को व्यजन और चामर डुलाए और मार्ग में जो नगर की स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, वे पुष्पों की वृष्टि करती हैं और भगवान के स्वरूप को देख करके अत्यंत विस्मय होकर के चर्चा करती हैं। यहीं से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कि हस्तिनापुर की जो कुलीन रमणियां हैं, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में अत्यंत रम गया है, तो भगवान के अत्यंत मधुर सौंदर्य मूर्ति को देख करके आपस में क्या बातें कर रही हैं, उन्हीं यहीं से यह श्लोक जो है हम लोग प्रारंभ करेंगे 21वें श्लोक से। और देखिए, उस समय लोग कहते हैं कि शिक्षा, नारी शिक्षा कैसे क्या, लेकिन उस समय कितनी बड़ी शिक्षा थी माताओं में, जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए और दर्शन के उपरांत उनके स्वरूप का कैसे वर्णन करती हैं आपस में। इतना जो दार्शनिक विषय है, और उनको भगवान नंदनंदन का दर्शन हुआ तो कैसे, किस रूप में दर्शन हुआ, आपस में चर्चा करती हैं भगवान के स्वरूप को देख करके।
स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्त शक्तिषु। अब ये देखिए, यह जो 21 से लेकर के 24 तक का श्लोक है, 4 श्लोक है, प्रायः हम देखते हैं कि 100 शब्द की आवृत्ति है। 21वें श्लोक में भी है, 22वें में भी है, स एव भूयो निजवीर्य चोदिताम, 23वें श्लोक में सवा अयम हित पदमत्र सूर्यो, और 24वें श्लोक में भी सवा अयम सख्यनुगीत सत्कथ हो। यह जो 4 श्लोक है यह बिल्कुल एक साथ है और माताएं चर्चा करती हैं भगवान के स्वरूप को देख करके। तो सबसे पहले हम लोग बहुत कुछ न कहते हुए इस मंगल पद का एक सामान्य अर्थ क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद भगवत कृपा से टीका के आधार पर जितनी बुद्धि, जितना हमें समझ में आएगा, मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कहने के लिए। सीधा सीधा सा अर्थ है, सवै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु। कहते हैं कि भाई यह सवै किलायम पुरुष, सवै किलायम पुरुष पुरातनो, ये वही भगवान निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, आदि पुरुष है। यह एक आसीद विशेष आत्मनि, कहते हैं कि वही जो निर्गुण पुरुष अपने स्वरूप में निवास करते हैं और हमारे भाग्य से सगुण होकर के यहाँ पधारे हैं। और क्यों कि इन्हीं से जगत की सृष्टि, जगत का पालन और संहार भी होता है। अर्थात बिल्कुल जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो प्रतीति है भगवान के स्वरूप में देख करके सवै से निश्चित करते हैं कि ये कोई दूसरे भगवान नहीं है, अपितु जिनसे सृष्टि पालन संहार होता है। सवै किलायम, देखिए अव्यय का भी प्रयोग किया गया, वही का भी प्रयोग किया गया, विशिष्ट दृढ़ता के लिए बार बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यही नहीं, इन शब्दों का प्रयोग आगे के श्लोकों में भी, जैसे दूसरे श्लोक में 22वें में यहाँ भी, और सवा अयम, इनकी आवृत्ति जो है भगवान के स्वरूप के वर्णन में कितना व्यापक रूप से है, इसे हमें देखना चाहिए। इसके बाद सवै किलायम पुरुष पुरातनो ये एक आसीद विशेष आत्मने अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु। आइए अब हम जो है कुछ टीका की बातें भगवत कृपा से हम लोग इसका वो करते हैं। आचार्य श्रीधर स्वामी जी इसकी टीका करते हुए कहते हैं कि तत्र तेजः सौंदर्याद्यतिशयेन विस्मिताभ्यः सखीभ्यः अन्याः स्त्रियः कथयन्ति। अर्थात भगवान की तेज और सौंदर्य के अतिशय को देख करके कुछ सखी विस्मित हैं, और जिन्हें अवबोध है, जो जानती हैं कि नहीं वही भगवान के स्वरूप को जो अच्छी तरह जानती हैं, तो जो विस्मित सखियां हैं उनसे वे चर्चा करती हैं। अन्याः स्त्रियः कथयन्ति, दूसरे से कहती हैं, कहते हैं भैया यहाँ विस्मय मत करो, नात्र विस्मय कार्य, यहाँ विस्मय करने की जरूरत नहीं है, कहीं आगे पीछे करने की जरूरत नहीं। सवै क्यों कहते हैं कि साक्षात ईश्वरत्वात्, ये साक्षात ईश्वर ही हैं जिन्हें हम मनुष्य के रूप में देखते हैं। अर्थात निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है, आज वही भगवान नंद नंदन वही सगुण रूप में हमारे यहाँ विराजमान है। इसीलिए तो अपने भाग्य को कहती हुई
आगे के श्लोकों में कहती हैं, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलम, अहो अलम पुण्यतमं पधोर्वनम, यदे सपुंसा मृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अंतिम अंतिम श्लोक में जो कहती हैं, तो अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, जो निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा वेदांतियों के जो ब्रह्म है, जो योगियों के जो ईश्वर है, वही साक्षात वही भगवान नंद नंदन है। इसलिए यहाँ विस्मय आदि संशय आदि करने की जरूरत नहीं है। सवायति चतुर्भिः श्लोकैः वही स्मरणे और किलीति प्रसिद्ध्या प्रमाण द्योतकम, ये प्रमाण का द्योतक है। इसीलिए कहा कि यह, तब कहा कि हो सकता है कोई दूसरे भी पुरुष शब्द को कहने से लगता है कि पुरुष में कहीं इसकी व्याप्ति न हो जाए, तो फिर तो लक्षण जो है दूषित हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, क्योंकि भगवान को भी आपने तो पुरुष कहा, तो कहा कि नहीं, यह एक एव अद्वितीय पुरुष, यह अद्वितीय पुरुष है, एक। तो क्या भाई, इसी को श्रुति तो कहती है, कहती हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, तो वहां भी एक पद दिखाई देता है। और हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, सबसे पहले यह सृष्टि के आदि में और संहार के अंत में, प्रलय के अंत में। तो कहा हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसी का लग रहा है कि व्यास जी उसी का ठीक एकदम बिल्कुल व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह एक एवा द्वितीय पुरुष आसीत, कहते वह जो अकेला अद्वितीय पुरुष था वही स एव अयम श्री कृष्ण, कहते वही भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं कुत्रासीत, कहते हैं अविशेषे आत्मनि निष्प्रपंचे निज स्वरूपे, कहते हैं वो कैसे ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, अविशेषे आत्मनि और निष्प्रपंचे निज स्वरूपे। इसकी व्याख्या आगे हम लोग जानेंगे। अविशेष का मतलब यह है कि जहां कुछ भी शेष न हो, निर्विशेष, ये समवर्तताग्रे को लेकर के कह रहा है। और निष्प्रपंचे का मतलब यह कि यह प्रपंच तो सृष्टि के बाद और प्रलय के पहले ही तो है, और सृष्टि के पहले और प्रलय के बाद तो बिल्कुल प्रपंच है ही नहीं। तो यह सारा प्रपंच जो है सृष्टि के बाद है और प्रलय से पहले है। और भगवान हमारे कैसे हैं, जो जिनकी चर्चा हो रही है, कहते हैं निष्प्रपंचे, अर्थात सृष्टि के आदि में। इसीलिए वहां अग्रे पद भी देता है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, वह अग्रे पद भी इसी बात को कह रहा है। और निर्विशेष अविशेष, जहां कुछ भी शेष नहीं था। शेष का मतलब यह है कि भाई सत्वगुण सत्वरज तमोगुण तो जरूर रहा होगा, क्योंकि जब तक गुण में क्षोभ नहीं उत्पन्न होते तब तक सृष्टि का क्रम नहीं आता है सांख्य मत के अनुसार। लेकिन कहा नहीं, कुछ भी नहीं था, अविशेषी आत्मनि, अपने में, और निष्प्रपंचे निज स्वरूपे, कोई प्रपंच ही नहीं था, संसार ही नहीं था, तो अपने स्वरूप में स्थित। कब ऐसी स्थिति कब रही, कदा, कहते हैं इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य श्रीधर चरण जी कहते हैं अग्रे। अग्रे का तात्पर्य क्या है, कहते हैं गुणेभ्यः गुणक्षोभात् पूर्वम। गुणक्षोभात् पूर्वम का मतलब यह है कि यह इस सृष्टि से, भाई प्रकृति में, प्रकृति और पुरुष में जब यह क्षोभ उत्पन्न होता है तभी तो सृष्टि का प्रारंभ होता है, अन्यथा सृष्टि का प्रारंभ ही न हो। तो यह जो है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो अग्रे गुणेभ्यो, गुण सत्व आदि जो गुण है इनसे भी पहले, अर्थात गुण क्षोभात् पूर्वम, प्रकृति और पुरुष में किसी प्रकार का कोई क्षोभ उत्पन्न ही नहीं हुआ, इससे पहले। ये अग्रे की व्याख्या है। और कहा, तब कहा कि भाई निशि शब्द भी आया है। तो निशि शब्द का अर्थ क्या है, निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु, कितनी बड़ी बात है। तो कहते हैं कि निशि का अर्थ है यहाँ प्रलय, तो सृष्टि के पूर्व जो भगवान थे, और
प्रलये च तस्य लक्षणं जगताम आत्मनि जीवे निमीलितात्मन इति लुप्त सप्तम्यंतम पदम जातो एक वचनम। अर्थात कहते हैं कि इसकी व्याख्या आगे हम और स्पष्ट करेंगे। निशि का अर्थ है प्रलय। तो प्रलय में भी, प्रलय की दिशा में तो ये भगवान जो है हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे, सृष्टि से पूर्व और प्रलय के बाद जो भगवान की स्थिति है, ऐसे भगवान है। कहीं ईश्वरे लीन रूपेषु जीवेषु सत्सु इत्यर्थः। अर्थात सब कुछ जब लीन हो गया, लीन होने के बाद भी परमात्मा की सत्ता जहां दिखाई दे, जहां अनुभव हो, ऐसे जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, वही हमारे भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्ण है, ये कह रहे हैं। और यहाँ आचार्य चरण ने कहा कि आत्मन जो शब्द है यहाँ आत्मनी है और सप्तमी विभक्ति का लुक हो गया है, तो लुप्त सप्तम्यंतम पदम। तो यहाँ कहा कि जो है निमीलित आत्मन निशि जो कहा है, तो आत्मनी शब्द है। इसके बाद जो है अब हम लोग इस श्लोक को यही वो करके आगे हम और आचार्यों के चरणों में चलते हैं और आचार्य चरण क्या कहते हैं। और इसी भगवान की भी यही इच्छा है कि बहुश्याम प्रजायेय नाम रूपे व्याकरमाणी। यह भगवान का संकल्प पूर्वक जो भगवान की यह सृष्टि है, और इसी को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि भाई, और भगवान इसी को जो है आगे बताते हुए कहते हैं कि भाई यस्मिन, हम लोगों का ध्येय क्या है, संसार में जन्म लेने का एक ही फल है, क्या? यस्मिन विदिते सर्वमिदं विदितम भवति। यह भगवती श्रुति कहते हैं। अर्थात इसका मूल क्या है? कहते हैं भगवान ज्ञातव्यः, भगवान को जो जान लिया, यस्मिन विदिते सर्वम इदम विदितम भवति। यह संपूर्ण समस्त जो जगत है वह सब कुछ भगवान को यदि जान लिया तो अब कुछ भी जो है ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रहता है। और लेकिन हाँ ये है कि सोई जानी जेहि देहु जनाए, सबको वह ज्ञात भी तो नहीं होता है, उस तत्व का ज्ञान भी सबको नहीं होता है। सोई जानी जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो हम लोगों के जन्म का केवल एक मात्र ही प्रयोजन है, यस्मिन विदिते सर्वमिदं विदितम भवति। जो श्रुति कह रही है, इस श्रुति का मूल है कि भगवान को ही जानना है, भगवान से अतिरिक्त कुछ नहीं जानना है। और यदि भगवान को हम लोग जान लिए तो सब कुछ जान लिए, इस प्रकार जो है। और यही नहीं, इसी की दृष्टि से, इसी भगवान की जो सृष्टि है, इसी श्लोक को और चरितार्थ करते हुए साक्षात श्रुति कहती है कि आत्मैव इदम अग्रे आसीत पुरुष विधा। जो यहाँ भगवान को पुरुष कहा गया है, साक्षात श्रुति कह रही है आत्मैव इदम अग्रे आसीत पुरुष विधा पूर्वम एव अहम इह आसम। अब क्या, इससे क्या कोई अधिक कह सकता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, अरे भैया कहीं कुछ भी नहीं था, पूर्वम एव अहम इह आसम, पहले मैं ही था। और तो कहेंगे भाई पुरुष कह देने से कहीं पुरुष का लक्षण जो है कहीं अन्य पुरुषों में न चल जाए, इसीलिए साक्षात श्रुति कहती है पुरुषो हवै नारायणो अकामयत। भगवान को भी जो है पुरुष शब्द से कहा गया है। और तो ये जो श्रुति प्रमाण है इस बात को सिद्ध करने के लिए, तो ये जो है सबसे बड़ी बात है। तो उस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रुति भी कहती है, और जो श्रुति जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करती है वही एक और अद्वितीय तत्व भगवान श्री कृष्ण है। ये वहां की स्त्रियां कह रही हैं भगवान के विषय में, भगवान को देख करके जो विस्मित हुई हैं, उनको समझा रही हैं कि आप इसमें भ्रम मत कीजिए, ये वही भगवान है जो भगवान सृष्टि के आदि में जो ब्रह्म है और जिनके द्वारा पालन पोषण और संहार होता है, वही ये भगवान है। इसलिए वह भी पद जो है अवधारण माने निश्चय के अर्थ में है, और किल भी जो है इसलिए भी और निश्चित होता है। आत्मैव इदम अग्रे आसीत पुरुष विधा पुरुषो हवै नारायण। पुरुष शब्द से जो है केवल भगवान नारायण का ही बोध होता है।
पुरुषो, इसीलिए तो पुरुष सूक्त है, तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतः इत्यादि जो मंत्र है, और पुरुषो हवै नारायणो अकामयत इत्यादि जो श्रुति है वही यहाँ पर प्रमाण है। तो जो एक अर्थात जो अद्वितीय है, पुरातन है, अर्थात हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे जिसे कहा गया है, और यही नहीं सभी कारणों का कारणभूत है, कुछ था ही नहीं, उसका कोई कारण नहीं है, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते इत्यादि जो श्रुति कहती है। तो भगवान जो है सभी के सभी कारणों के कारणभूत हैं। ऐसे जो भगवान है पुरुष आसीत, ऐसे जो ब्रह्म निराकार निर्विकार निरीह जिन ईश्वर को आप कहते हैं, स एव अयम श्री कृष्ण, वही भगवान श्री कृष्ण ये है। ये कहते हुए अब जो है यहाँ कहते हैं कि भाई जब भगवान थे तो उनका आधार क्या था। स्वाभाविक है कि हम जहां पर भगवान यदि थे तो भगवान का आधार क्या था। ऐसा प्रसंग आया है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है कि कस्मिन् स भगवः, वह जो भगवान थे उनका आधार क्या था, साक्षात श्रुति कह रही है। उसी तरह यहाँ भी कहा कि भाई उनका जो आधार क्या था। एक मंत्र और है वेद में, वो स्मरण नहीं आ रहा है, तो वहां भी किम आधार इति ऐसे करके 17वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद के, तो कहा कि यत्र आसीत, उसका उन भगवान का आधार क्या था भाई, जहां पर भगवान विद्यमान थे। और तब कहा कि नहीं, वह तो अपने, उनका आधार स्वयं, वो स्वयं अपने आधार में थे। और उनको अद्वितीय कैसे आपने कह दिया, एक आधार होगा एक आधेय होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स आधारोपि स्वयमेव इत्याहुः आत्मनि इत्यादि कह करके कहा गया है। अर्थात भगवान स्वयं उपस्थित भी थे और अपने में ही प्रतिष्ठित थे। स्वस्मिन्नेव प्रतिष्ठितस्य भगवान, अपने में ही प्रतिष्ठित थे। अर्थात भगवान सभी कारणों की जो कारण ईश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद जिन्हें कहा गया है, वही भगवान यहाँ, वही पुरुष भगवान यहाँ उपस्थित है भगवान नंद नंदन के रूप में, और सभी कारणों के कारणभूत हैं। और वे अद्वितीय थे, उस समय कुछ भी नहीं था। इसके बाद कहते हैं कि भाई अच्छा चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं था, लेकिन सत्व रजतम आदि गुण तो जरूर रहे होंगे। जब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रहा तो फिर अद्वितीय आपने कैसे कह दिया। सत्वादि बिना गुण के तो बिना उत्पत्ति सृष्टि संभव नहीं है। तो कहा कि नहीं नहीं, अविशेष, अविशेष का मतलब है कि सत्वादि गुण विशेष से जो रहित है, इनमें कहीं कुछ, जैसे हम लोग जो है यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, और सभी जीव जो है, सभी जीवों के अंदर सत्व रज तम ये भाव रहते हैं, लेकिन भगवान उससे पृथक हैं, उनमें कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस श्लोक में निर्विशेष पद कहा, अविशेष पद कहा गया है। अविशेष का तात्पर्य यह है कि सत्वादि गुण विशेष रहितः, सत्व रजतम इत्यादि जो गुण हैं इनसे भगवान रहित हैं। अच्छा, तब कहा कि भाई ये निर्विशेषत्व कैसे ये होंगे, कैसे इनको कहा। कहते हैं कि भाई सृष्टि तो सत्वगुण, ये सृष्टि तो प्रवर्तित होती है गुणों के आधार पर ही, मत्तः सृष्टि प्रवर्तते, और सत्वरजतम रूप से हो करके। तो कहा कि नहीं, अग्रे गुणेभ्यः, अग्रे गुणेभ्यः माने गुणक्षोभात, गुणक्षोभ हो तो सृष्टि हो, तो सृष्टि की उत्पत्ति से ये भगवान सबसे पूर्व में थे, पहले थे, इसीलिए अग्रे गुणेभ्यः कहा गया। और कहा चलिए ठीक है, सृष्टि से पहले थे, लेकिन क्या प्रलय की अवस्था में क्या थी। तो कहे नहीं नहीं, प्रलये च, तो कहते प्रलय एव कथम भवति। तो कहते हैं कि नहीं, जगदात्मनीश्वरे, भगवान कहते हैं कि निमीलितात्मन जगताम आत्मा अंतर्यामी, ये भगवान संपूर्ण जगत की आत्मा है और अंतर्यामी है। और ऐसे भगवान ईश्वर के निमीलितात्मने प्रसुप्ते सति प्रलयो भवति, उनके सोने से ही प्रलय होता है। भगवान आंख यदि खोल देते हैं तो समझिए सृष्टि हो गई,
और जैसे ही भगवान आंख बंद किए, नेत्र बंद किए, तो समझिए कि प्रलय हो गया। ये एक बहुत बढ़िया श्लोक है। त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम। हरि प्रबोधनी के अवसर पर भगवान को लोग जगाते हैं। भगवान तो बराबर जगे हुए हैं, उन्हें क्या कोई सुला सकता है और क्या कोई जगा सकता है। लेकिन हरि प्रबोधनी के अवसर पर कहते हैं कि भाई हे भगवान, आप यदि सोए रहेंगे त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम, उसका संकेत करते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान है, और जैसे ही भगवान आंख नेत्र बंद करते हैं, सृष्टि बिल्कुल समाप्त और प्रलय हो जाता है। तो तब किसी ने पूछा कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि भगवान भी सोते हैं? और यदि भगवान सोते हैं तो निद्रा तो तमोगुण का, तमोवृत्ति रूप है, सुषुप्ति है। इसका मतलब तमोगुण तो जरूर है। तो तमोगुण के रूप के कारण ही, तमोवृत्ति के कारण ही तो सुषुप्ति आती है। तो इसका भगवान तो तमोवशवर्तित्व का अभाव है वहां पर। तुम आप कैसे कहते हैं? तब कहते हैं कि नहीं भाई, सुप्त शक्तिषु, कहते हैं कि जहां सत्व रजतम आदि जो शक्तियां हैं, इनका जब लय हो जाता है, कहें सत्वादि शक्ति नाम लय एव ईश्वरस्य शयनम, जब इनका लय हो जाता है तब भगवान ईश्वर का शयन होता है। अर्थात इस सृष्टि के पूर्व में और प्रलय के बाद में जिनकी सत्ता है, ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर हैं, वही साक्षात भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण है। इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जगताम आत्मा अंतर्यामी, और तस्मिन ईश्वरे निमीलितात्मनि, निमीलितात्मनि माने प्रसुप्ते सती, भगवान सुसुप्तावस्था में आते हैं और प्रलयो भवति इत्यर्थः। कहते हैं प्रसुप्तावस्था ही भगवान की प्रसुप्तावस्था ही प्रलय है। तब कहते हैं ननु ईश्वरस्य तमोवशवर्तित्वाभावात् कथम तमोवृत्ति रूपा सुषुप्ति ही संभवति। तो उसी की व्याख्या करते हुए कहीं नहीं भैया, सुप्त शक्तिषु इति सत्वादि शक्ति नाम लय एव ईश्वरस्य शयनम न तमोवृत्ति निद्रानुभवः। कहे भगवान को ये सब कहा तमोवृत्ति और सुषुप्ति आदि है, ये सब जब अपने कारण में लीन हो जाते हैं, अर्थात सत्व रजतम आदि जब अपने कारण में लीन हो जाते हैं, इसके बाद भगवान जो है, भगवान सुषुप्तावस्था को प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य यह, फिर एक बार हम इस श्लोक को पढ़ें, यह स्पष्ट हो गया होगा। तो कहते हैं कि भाई एक बार इस श्लोक का पाठ करते हैं। हाँ, यह आया। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई। सवै किलायम पुरुष पुरातनो, यह भी बात स्पष्ट हो गई। यह एक आसी दविशीष आत्मनि, यह भी स्पष्ट हुआ। और अग्रे गुणेभ्यः जगता मनीश्वरे निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु, यह श्लोक जो है हम लोग इसका पाठ किया, और इसकी जो व्याख्या हमें अत्यंत बुद्धि सौलभ्य के कारण जो प्राप्त हुई, उसकी व्याख्या हम आप लोगों के समक्ष रखे। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। दूसरा जो श्लोक है 22वां, इसका हम एक बार उच्चारण करते हैं। सैव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायां प्रकृतिं सृक्षतिं अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधित समानोऽनुससार शास्त्रकृत। सैव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सृक्षतिं अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधित समानोऽनुससार शास्त्रकृत। अब देखिए, इस श्लोक में भी जो है 100 पद कहा गया है, इसके पहले वाले में भी 100 पद कहा गया। और यही नहीं, एव पद भी, एव पद से निश्चय रूप से कहा जा रहा है कि स एव भूयः, कहते हैं कहीं कोई दूसरा नहीं था, यह वही है भगवान नंद नंदन। तो भगवान के गुणों का संकीर्तन इस श्लोक में भी है, और 100 पद का प्रयोग और एव पद का भी प्रयोग किया गया है। स एव भूयः निजवीर्य चोदिताम स्वजीव मायां प्रकृतिम सृक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधित समानु नुससार शास्त्रकृत। एक बात और मैं कहूंगा
इसमें भगवान को शास्त्रकृत कहा गया है। देखिए हम लोग जो है वस्तुतः हम लोग जो यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलं जगत जो कहते हैं, वस्तुतः शास्त्रकृत से भगवान का ही बोध होता है। और एक और बात है कि जो नैयायिक हैं वे भगवान को जो है वेद वेद को ईश्वर की रचना मानते हैं। यह बहुत बड़ा प्रमाण है शास्त्रकृत होने का। अन्य तो जितने हैं मीमांसा आदि जो शास्त्र हैं वे वेद को अपौरुषेय मानते हैं, अपौरुषेय स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रमाण को ही मानने वाले जो नैयायिक हैं वो जो है ईश्वर को कहते हैं, वेद को कहते हैं कि नहीं ईश्वर कृत है। इसी तो यह भगवान अर्थात वेद शास्त्र का निर्माण करने वाले भगवान हैं। अब हम इसकी व्याख्या में सबसे पहले श्रीधरी टीका के आलोक में हम लोग देखेंगे। कहते हैं कि तदेवं इस प्रकार सृष्टेः आदौ प्रलयानंतरं च निष्प्रपंचावस्थानम उक्त्वा। अब कहते हैं भाई प्रपंच क्या है और निष्प्रपंच क्या है। तो कहते हैं कि प्रपंच जो है सृष्टि के बाद और प्रलय के पहले ही तो प्रपंच है। सृष्टि के बाद और प्रलय के पहले यही प्रपंचावस्था है। और भगवान हमारे कैसे हैं, सृष्टि के आदि में हैं और प्रलय के अनंतर हैं। तो इसको हमने क्या कहा, निष्प्रपंचावस्था। यह सारा जगत जो प्रपंच है प्रपंच ही है यह पूरा। तो कहते हैं निष्प्रपंचावस्था को कह करके एक प्रपंचावस्था कहा और एक निष्प्रपंचावस्था कह करके अब आगे कहते हैं कि सृष्टि, इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं सृष्टि प्रलयोर मध्य सब प्रपंचावस्थानम आहुहु। कहते हैं कि सृष्टि और प्रलय का जो मध्य है वही तो प्रपंच है, उसी को सब प्रपंच कहा। लेकिन भगवान नंदनंदन कैसे हैं, निष्प्रपंच है। इसी को बतलाते हुए आगे आचार्य श्रीधर श्रीचरण कहते हैं कि स एव, अर्थात जो निष्प्रपंच स्वरूप जो भगवान नंद नंदन है वही स एव अप्रच्युत स्वरूप स्थितिरेव प्रकृतम अनुससार अधिष्ठितवान। कहते वही जो उसी बात को तो वही मंत्र का वेद कहते हैं कि हिरण्यगर्भस्मवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो उसी बात को कहते हुए कहते हैं कि एक तो प्रपंचावस्था क्या है और एक निष्प्रपंचावस्था क्या है। इसको कहने के बाद कहते भगवान का एक नाम अच्युत है। कहते स एव, वही भगवान श्री कृष्ण अप्रच्युत स्वरूप स्थितिरेव, कभी अपने स्वरूप से च्युत जो न हो उसी का नाम क्या है, अच्युत है। ऐसे भगवान जो है प्रकृतिम अनुससारो, क्योंकि प्रकृति सृष्टि की रचना की। और क्यों कहते हैं कि यही तो भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में कहते हैं कि ये जितनी अष्टधा प्रकृति है और यह कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। और ये कहते कि यह सृष्टि जो है यह हमारे प्रकृति के अधीन है और हमारे नियंत्रण में है। प्रकृति ही जो है इस सृष्टि को करती है। इसलिए कहा कि प्रकृति अनुससार, अनुससार का अर्थ है अधिष्ठितवान। कहते अधिष्ठितवान अर्थात भूतः पुनः सृष्टि प्रवाहस्य अनादित्वात्। एक बात और है, कहते हैं कि सृष्टि और प्रलय को जो मीमांसक हैं ये अनादि मानते हैं। कहते हैं कि यह जो सृष्टि और यह प्रलय है बराबर ऐसे ही चलता रहता है। जो भी जगत है यह अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है। पुनः सृष्टि प्रवाहस्य अनादित्वात्। इसके बाद इसी बात को कहते हुए आगे कहते हैं कि ऋषि कैसी भाई, निजवीर्य चोदिताम, कैसी सृष्टि है, निजवीर्य चोदिताम स्वकाल शक्ति प्रेरिताम स्वांस भूतानाम जीवानाम मायाम मोहिनीम अतएव शिश्रिक्षतीम सृष्टुम इच्छतीम।
अब ये बहुत बढ़िया, प्रकृति कैसी है भाई? कहते हैं निजवीर्य चोदिताम स्वकाल शक्ति प्रेरिताम स्वांश भूतानाम जीवानाम मायाम मोहिनीम। कहते उसे प्रकृति को कहा कि माया भी कहा। और माया कैसी है भाई? जीवों को मोह में डालने वाली। अभी माया का स्वरूप इसके पहले चर्चा चली थी कि माया की कैसे माया का क्या स्वरूप है। और कहते कैसे स्वांश भूतानाम जीवानाम, ये जीव जो है सामान्य नहीं है, स्वांश भूतानाम जीवानाम, इन जीवों को भी माया है उसका नाम। और मोहिनी स्वकाल शक्ति प्रेरिताम स्वांश भूतानाम जीवानाम माया मोहिनी। अतएव यही कारण है क्या? शिश्रिक्षतीम सृष्टुम इच्छन्तीम। कहते सृष्टि की इच्छा करने के लिए, सृष्टि की इच्छा, आप तो यही देखे होंगे कि भगवान स्वयं जो है बहुश्याम प्रजायेय, भगवान की स्वयं की इच्छा है। श्रुति में ऐसा आया है कि भगवान कहा कि द्वितीयाद भयम भवति, भय क्यों हो रहा है? तो कहा अद्वितीयाद भयम भवति, यदि दो हूं तब तो मैं तो अकेला हूं। इसके बाद कहा कि नहीं, स एकाकी न रमते, वह अकेले रमण करने में असमर्थ था, इसलिए कहा कि भाई सृष्टि करनी चाहिए। अतः वह सृष्टि की इच्छा की, और जैसे ही प्रकृति को प्रेरित करते हैं सृष्टि करने के लिए भगवान। और कहा किमर्थम अनुससार, कहे अनाम रूप आत्मनि, आत्मा का कोई नाम है न कोई रूप है। अनाम रूप आत्मनि जीवे रूप नामनि विधातुम इच्छन। कहते हैं कि भाई वह आत्मा कैसी है? अनाम और रूप। और यह संसार कैसा है? जीव कैसा है? रूप और नाम। संसार में यदि देखें तो कितनी बड़ी बात हमारे आचार्यों ने कह दिया कि नाम रूपात्मकम जगत। यह जो जगत है, दो ही वस्तु है इसमें, एक तो नाम रूप है और नाम है। एक हमारा नाम है, जैसे किसी का कोई नाम हो गया, और एक उसका स्वरूप है। क्या इसके अतिरिक्त और भी सृष्टि या जगत में कुछ और पदार्थ है? कुछ नहीं। एक वस्तु है, उसका एक स्वरूप है और उस वस्तु का एक नाम है। लेकिन वह कहा कि अनाम रूपे आत्मनि, वह आत्मनि, वह उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है? कहे उसका न कोई नाम है न कोई रूप है। अनात्म रूपे आत्मनि जीवे रूप नामनि विधातुम इच्छन। अर्थात वह भी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह भी ईश्वर का ही अंश है, लेकिन उसको रूप और नाम को प्रदान करने के लिए, रूप और नाम देने के लिए विधातुम इच्छन। इसलिए भगवान जो है प्रकृति से प्रकृति को प्रेरित करते हैं सृष्टि के लिए। उपाधि सृष्टिया जीवानाम भोगाय इत्यर्था। और एक हेतु दिया कि उपाधि सृष्टि क्या है भाई? तो कहते हैं जीवानाम भोगाय, जीवों के, हम जो जीव हैं उनकी भोग के लिए। और एक बात और कहा कि हम लोग केवल भोग में ही प्रवृत्त रहे, ऐसा भी नहीं है। कहा कर्माणि च विधातुम, हमें कर्म करने के लिए, हम कैसा कर्म करें? जगत में सृष्टि हुई तो सृष्टि में जब हम आ गए तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है? इसके लिए भगवान ने वेदों की रचना की, वेदों को बनाया और शास्त्रों की रचना की। ये इसीलिए हम वेदादि शास्त्रों को कहते हैं भगवान की वाक्य हैं, भगवान की आज्ञा स्वरूप हैं ये वेद और शास्त्र। इसलिए भगवान की आज्ञा समझ करके हमें कर्म करना चाहिए। इसीलिए तो कहा कुर्बन नेविह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। तो क्या कर्म करके हम जीवित रहे? केवल यही कर्म नहीं, कर्म और कार्य में अंतर है। वहां क्यों नहीं लिख दिया कि जो है कर्म न करके बल्कि कार्य ही लिख देता? तो कहा नहीं नहीं, कार्य और कर्म में जो है अंतर है। कर्म तो वस्तुतः वेदादि प्रतिपाद्य जो भगवान की आज्ञा रूप है वही कर्म है, बाकी तो सब कार्य है। इसलिए यहाँ भी हम लोग देखते हैं कार्यालय लिखते हैं और कर्मालय नहीं लिखते हैं, तो कर्म और कार्य में अंतर है। तो कहा कर्माणि च विधातुम। और इसी प्रकार से 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में की गई है। अप्रशस्त, प्रशस्त आदि, हम वहां नहीं जाएंगे, यहाँ यही रहेंगे। कहा कर्माणि च विधातुम, उन कर्मों को करने के लिए।
क्या किया भाई? कहते हैं वेदांत कृतवान इत्यर्थः, वेदांत कृतवान इत्यर्थः, इसीलिए भगवान को शास्त्रकृत कहा गया है। तो और क्योंकि इसीलिए तो वहां भी जो है कहा गया कि भाई भगवान का बोध, भगवान के बोध में कारण शास्त्र योनित्वात्, वेदांत सूत्र में भी शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र से यह बात जो है सत्य होती है। यहाँ भी भगवान को शास्त्रकृत कहा गया है। इस प्रकार से अब हम और इस विषय को स्पष्ट करने के लिए थोड़ी सी और दूसरे आचार्य जी के चरणों में चलते हैं कि शायद और स्पष्ट हो जाए। इस बात को लेकर के आए हम देखते हैं कि कहते हैं कि तदेवं सृष्टेः आदौ प्रलयानंतरं च निष्प्रपंचावस्थानम उक्त्वा, आचार्य चरण ये भी उसी बात को, आचार्य श्रीधर स्वामी जी ने जो कहा है उसी बात को यह भी आचार्य कह रहे हैं। बालक प्रबोधिनी आचार्य जी भी कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में और प्रलय के बाद जो निष्प्रपंचावस्था है उसको कह करके, और सृष्टि प्रलय और मध्य सब प्रपंचावस्थानम आहो, ऐसे उसको कह रहे हैं। स निर्विशेषे परमानंद स्वरूपे स्थितः एव निज वीर्येण स्वशक्ति रूपेण कालेन चोदितां प्रेरितां क्षुभित गुणाम अतएव शिश्रिक्षतीं सृष्टुम इच्छन्तीं विश्व सर्जनोन्मुखीं प्रकृतिम अनुससार। बहुत बढ़िया बात, बड़ा स्पष्ट हो गया। जिस बात को हम उससे कह रहे थे अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगा करके, उसी बात को बहुत स्पष्ट इन्होंने आचार्य चरण ने कहा कि भैया वह जो निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, कहते हैं परमानंद स्वरूपे स्थित एवं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए, इसलिए भगवान को अच्युत कहा गया है। आचार्य उस टीका में भी हम लोगों ने देखा, कहा कि निज वीर्येण, अपनी शक्ति से, स्वशक्ति रूपेण कालेन, अपनी शक्ति स्वरूप, भगवान की जो शक्ति स्वरूप जो है वो काल है, क्योंकि कालो ही परमम कहा, कालो ही परमम तपः ऐसा कहा गया। काल की बहुत प्रशंसा की गई है। भगवान अपने शक्ति स्वरूप जो काल है उससे प्रेरित होकर के, प्रेरिताम क्षोभित गुणाम, क्षोभित गुणाम यह प्रकृति का विशेषण है। तो भगवान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से, भगवान ने काल को प्रेरित किया और काल की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ। प्रकृति और पुरुष में जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, मिलने की इच्छा हुई, और जगत की सृष्टि के लिए सृष्टुम इच्छतीम, अर्थात विश्व के सर्जन की प्रवृत्ति जो है, विश्व सर्जनोन्मुखी प्रकृति, विश्व की सृष्टि करने के लिए उन्मुख जो प्रकृति है, अनुससारो, कहते हैं तदनुकूलतया अधिष्ठितवान इति अन्वयः, कहते प्रकृति का भगवान आश्रय लिए ही नहीं, बिना प्रकृति के आश्रय लिए कहीं कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए वहां भी आप देखेंगे महाराज के प्रसंग में भी, वहां भी प्रकृति का आश्रय भगवान ने लिया, और भगवती योग माया भी वहां प्रकृति के रूप में कही गई है। तो भगवान नंद नंदन जब भी कुछ विचित्र लीला करनी होती है या सृष्टि की लीला करनी होती है, तो बिना आद्या शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए वहां भी कहते हैं कि प्रकृतिम अनुससार तदनुकूलतया, उसके अनुकूल होकर के अधिष्ठितवान इति अन्वयः, कहते हैं पुनः इत्यनेन सृष्टि प्रवाहस्य अनादित्वम दर्शयति। उसी बात को आचार्य चरण जी कहते हैं, यह जो सृष्टि का प्रवाह है वह अनादि है, अपने आप जो है यह सब कुछ संभव है। हम लोग अनुभव कभी कभी करते हैं कि हम जो चीज नहीं चाहते हैं वह भी अचानक अकस्मात हो जाता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह भी अवसर मिलेगा कि हम कुछ दो शब्द भगवान की सपर्या करें, अचानक आ गया। इसी से मानना चाहिए कि सृष्टि के जितने कार्य है, यह सृष्टि का प्रवाह है। अपने आप जहां जाना है, जहां रहना है, जहां भोजन करना है, हमारे जितने सारे कार्य हैं सब निश्चित है भगवान की तरफ से। केवल हम एक जो है
निमित्त मात्र। इसीलिए भगवान ने कहा कि बस इनको तो मैंने पहले ही हम तो मार चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, तुम केवल निमित्त हो। और ऐसा समझ करके यदि हम कर्म करते हैं तो हमारे अंदर घबराहट नहीं हो सकती है। तो मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, करना तो सब प्रभु को ही है। इसीलिए सृष्टि प्रवाह को अनादित्वम दर्शयति। कहा किमर्थम ताम अनुससार इति अपेक्षायाम आहु, क्यों उनको अधिष्ठित क्यों हुए कहते हैं। अनाम रूपात्मनि, नाम रूप रहिते जीवे। बहुत बढ़िया कहा। कहते हैं कि जीव भी जो है भगवान का अंश है। तो भगवान यह आत्मा है, नाम रूप जो रहित है। जीव भी तो वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश होने के कारण यह जो जीव है, जीव में भी जो भगवान, जो कारण में गुण होते हैं वही कार्य में होते हैं। तो हम लोगों की कारण तो भगवान है। भगवान अनाम रूपात्मनि नाम रूप रहिते जीवे, नाम रूप रहित जो जीव है उसमें रूप और नाम को विधित समान विधातुम इच्छन, उसको हम नाम दें, उसका एक स्वरूप दें। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, अब हमें कुम्हार के मन में होता है कि हमें इससे जो है कलश बनाना है। तो कलश का एक रूप हो गया और उस रूप के अनुसार नाम हो गया। तो अब जब तक वह मिट्टी था तब तक तो नाम रूपात्मक रहित था। लेकिन जब उनके अंदर, कुम्हार के अंदर यह प्रेरणा हुई कि अब हमें कलश बनाना है, तो वह सीधे मृत्तिका से तद्रूप जो है, जो चक्र चीवर इत्यादि हैं, उनसे उन उपकरणों के द्वारा कलश यह नाम पड़ा और उसकी एक आकृति पड़ी। उसी तरह आचार्य चरण कहते हैं यह जीव भी नाम रूप रहते जीवे, नाम और रूप से रहित। जब जन्म से पहले हमारा क्या रूप था और क्या नाम था, कुछ भी नहीं था। उसी को कह रहे हैं कि नाम रूप रहते जीवे। जब हम जन्म लिए तब तो हमारा नाम हुआ और हमारा स्वरूप। जन्म से पहले तो हमारा कोई न नाम था न कोई रूप था। कहे रूप नामनि विधित समान, अर्थात भगवान ने ही हम लोगों पर कृपा करके हम लोगों को रूप देने के लिए और नाम देने के लिए विधित समान विधातुम इच्छन। और यही नहीं, देहाद्युपादि सृष्टिया जीवानाम भोगार्थम, कहते यह शरीर दिया तो कहा कि भोगों के लिए। भोग का मतलब यहाँ जो चतुर्विध जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको करने, इनकी प्राप्ति के लिए वस्तुतः इस जीव का केवल एक ही प्रयोजन है, भगवान को जानना और धर्मादि काम मोक्ष पुरुषार्थ इत्यादि जो पुरुषार्थ हैं इनकी प्राप्ति करना। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाकी जो हम लोग करते हैं वह सब अनित्य है। इसीलिए कहा देहाद्युपादि सृष्टिया जीवानाम भोगार्थम, जीवों के भोग के लिए। एवं नाम रूप विधाने भी तेषाम भोग संपत्ति कथम, नाम रूप विधान होने पर भी उनकी भोग संपत्ति कैसे है। कथम स्यात् इत्यपेक्षायाम, कहते हैं मायया स्वरूपावरण पूर्वक देहाद्यात्माभिमानेन इत्याशयन आहुः स्वजीव मायाम इति। इसी अंश को चरितार्थ करते हुए कि उस श्लोक में स्वजीव मायाम यह कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि स्वांश भूतानाम, कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दिया, स्वांश भूतानाम जीवानाम मोहिनीम इत्यर्थः। ईश्वर के अंश जो जीव हैं उन जीवों को मोह में डालने वाली, जैसे भूमि परतभा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। वस्तुतः माया कहीं कुछ नहीं था। वर्षा का जो जल है वह बिल्कुल निर्मल था, जब आकाश से चला बिल्कुल निर्मल था, कहीं कुछ भी नहीं। लेकिन भूमि परतभा, आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भूमि परतभा ढाबर पानी और जन जीव ही माया लपटानी। जैसे ही जन्म हुआ, जैसे ही यहाँ नाम रूप मिला, वैसे ही वह माया में। अब लोग कहते हैं नहीं कि किसमें, उसमें जो है गर्भ रह करके जीव कितनी स्तुति भगवान का करता है कि हे प्रभु, हम अनादिकाल से यहाँ पड़े हुए हैं, आप हमें इसे मुक्त कीजिए, कभी भी हमारा जन्म आदि बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में आता है, सब कुछ वह एक ऐसी माया शक्ति है जिससे वह बिल्कुल सब कुछ ज्ञान जो है वो भुला देती और
भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। उसी बात को कहते हुए आचार्य कहते हैं कि स्वांश भूतानाम जीवानाम मोहिनीम इत्यर्थः। और ईश्वर में तो तीनों है, इसीलिए भगवान को तो कहा गया सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। लेकिन जीवों में आनंद की कमी है, इसीलिए भगवान श्री राम को भी कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान भी आनंद धाम है। अच्छा, हम लोग भी उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हर एक समय चिंतित रहते हैं। हम लोग बराबर जो है उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग लौकिक वस्तुओं में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह आनंद तो अलौकिक है। इसीलिए वहां कहा स्वांश भूतानाम जीवानाम मोहिनीम इत्यर्था। तो सत भी है, चित भी है, लेकिन हमारे में आनंद की कमी है। और उसी आनंद को ढूंढने के लिए हम लोग जितने उपकरण हैं, लौकिक उपकरण हैं, सब सुख, लौकिक सुख हम जीवन भर बटोरने में ही लग जाते हैं, फिर भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहे तथा भोग संपद्यते इत्यपेक्षायाम ये तो मर्यादा रूपम शास्त्रम कृतवान। कहते हैं हम ही लोगों के लिए जो वेद शास्त्र इत्यादि बनाए गए हैं, पशुओं के लिए नहीं, अपितु हमें लोगों के लिए बनाए गए हैं कि हम लोग उनकी भगवत आज्ञा समझ करके शास्त्र के वचनों को माने और उसका अनुकरण करें। इसीलिए तो स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। तो चरित्र की जो शिक्षा दी जाएगी वह शास्त्रों के माध्यम से ही तो शिक्षा दी जाएगी। शास्त्रों में पढ़ करके हम आचरण करते हैं और आचरण के द्वारा हम दूसरों को शिक्षा देते हैं। इसलिए व्याख्याने नहीं कहा, कथा कहने से नहीं, अपने आचरण से। तो आचरण प्रधान यह भारतवर्ष है, इसीलिए मर्यादा रूपम शास्त्रम कृतवान। ये शास्त्र भी कहा कि शास्त्र कैसा है, कहते हैं इसकी भी एक मर्यादा है। इसलिए हम लोगों के कर्म को करने के लिए भगवान ने नाम दिया, हम लोगों को रूप दिया, और हम लोग करें क्या? क्या ऐसे ही बैठे रहें? कहे नहीं, धर्मादि जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति के लिए भगवान ने एक हमें बुकलेट दी, एक भगवान ने शास्त्र दिया कि इस शास्त्र को हमारी आज्ञा समझ करके आप इनका आचरण करें। इसीलिए इस श्लोक में कहा कि शास्त्रम कृतवान, और भगवान ने वेदादि शास्त्रों की रचना की। इसीलिए तो कहा गया कि यस्य निश्वसितम वेदा, सबसे पहले ऋग्वेद जो है अब वर्तमान में भी साबित हो चुका है, यह सब सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वह ऋग्वेद है, और यही ने हमारे यहाँ पहले से ही कहा जा रहा है। इसीलिए यस्य निश्वसितम वेदा, भगवान की निश्वास भूत है, अर्थात भगवान का जो पहला श्वास है वे वेद हैं, और उन्हीं को यहाँ शास्त्र शब्द से कहा गया है। तो मर्यादा रूपम शास्त्रम कृतवान तथा च देहादि अभिमानेन यह तथा कर्माणि कुरुते स तथा तत्फलम सुख दुखादिकम भुंक्ते। अब कहते हैं कि भाई शास्त्र क्यों किया? कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार यदि जो जिस जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है, उसी के अनुसार उसे सुख और दुख प्राप्त होता है। तो जैसा हम कर्म, ये तो सब लोग जानते हैं, लोक में भी प्रसिद्धि है कि जो हम जैसा करते हैं उसी तरह का हमें फल प्राप्त होता है। तो यदि सुख प्राप्त है तो हमने पुण्य किया है, दुख प्राप्त हो रहा है तो पूर्व जन्म का कुछ न कुछ जरूर रहा होगा। इसीलिए बस इसी लाइन को मैं यही समाप्त करता हूँ, समय भी बिल्कुल हो गया है और मैं यही पूर्ण करता हूँ। तथा भोग संपद्यते इत्यपेक्षायाम इतु मर्यादा रूपम शास्त्रम कृतवान तथा च देहाद्यभिमानेन यह तथा कर्माणि कुरुते स तथा तत्फलम। देखिए यहाँ कर्माणि कुरुते में भी आत्मनेपद बड़ा जबरदस्त बात उन्होंने कहा है। क्यों नहीं रखता कि तथा कर्माणि करोति, यह ऐसा नहीं कहा। तथा च देहाद्यभिमानेन यह तथा कर्माणि कुरुते स तथा तत्फलम सुख दुखादिकम भुंक्ते इत्याशयेन आहुः शास्त्रकृत। इस प्रकार से भगवान की सृष्टि में भगवान ने जीवों को नाम रूप इत्यादि दिया, और हम लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए भगवान के आज्ञा रूप शास्त्रों को भगवान ने हमें प्रदान किया। इस प्रकार
जो कुछ हमसे इस कथा में त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहता हुआ आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय 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 श्री राधे। आचार्य रामानुज जी को हम भागवत की ओर से हम अभिवंदन करते हैं। आचार्य जी तो आचार्य चरण यात्रा में होने के कारण आपने जो भार संभाला है इसलिए हम आपसे अद्भुत 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 अद्भुत। मैं प्रणाम करता हूँ आचार्य जी, प्रणाम करता हूँ सर, प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम ना करें, आप आशीर्वाद दें, मैं आपका अनुज हूँ। नमो नमो नमः आचार्य जी नमो नमः। नमो नमः। राधे 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 जय 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 श्री राधे। प्रणाम सर्वेभ्यो नमो नमः। जय निताय जय राधे जय निताय जय निताय। यदि कुछ नाम संकीर्तन हो। हाँ नंदा जी सर है ना, तो सर जो है 2 मिनट उस प्रक्रिया का भी जो है पालन हो। अभी नंदा जी नहीं है। अच्छा मिश्र जी है तो 2-3 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 जय। आचार्य चरणों की जय हो। आज के कथा व्यास की जय हो। जय जय श्री राधे। समग्र हो। जय जय अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। जय जय श्री राधे।